वो इतनी वल्गर थी, इतनी डेरोगेटरी थी कि वो नहीं दिखाया जा सकता था, तो वो पार्ट पूरा कट कर दिया गया। बट कुछ लोग हैं जो समझदार है, वो समझ पा रहे हैं वो एपिसोड देख के कि कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, कोई चीज़ें यहाँ पे पूरी दिखाई नहीं गई। यार मैं कैसे समझाऊँ, मैं कैसे दिखाऊँ आपके सामने कोई लड़की अगर आके if she spread her leg and show you a very vulgar gesture with her finger towards her intimate area and say कि उसका अंदर ले ले, और भी 4-5 लड़कों का भी ले ले, how would you feel? You had 2,000 followers which have spiked to 1 million followers. Honestly, I used to panic actually. Yeah. Because it's a huge responsibility. Exactly. 2,000 to 1 million. Just imagine. तो मुझे लग रहा था कि मैं हैंडल कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, because of course you need great support now. Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and today we are sitting with a woman who's changed every controversy into a conversation, and I must say that every challenge into a comeback. Someone who's been a rebel but at the same time a royal herself. So join me as I welcome Khanzadi only on Zoom. First of all, lovely to have you, and I must say that you have taken this as a challenge, you know, while how you were in the Big Boss versus in the 50, you have completely molded yourself. Tell us about this transition. Honestly, I just know only one thing about myself, that I am real. I can't fake it. And that's what I think some people, like few people I must say, in the show, they could not digest the fact that how I used to take stand for myself, for others, for the right, and yeah. Did you also feel that somewhere in the house it kind of broke you because you wanted to be a different version of you, but the atmosphere in the house kind of didn't... It didn't break me. Yes. I stood for me. While you Till were the standing end. firm. Till the end, I stood for me, for myself. But while you were standing firm for your own self, did you feel that a little support from the house could have also done wonders to you? When I say so, a zero vote, you know, is a mystery still of not getting that support, which could have been working in your favor. What do you have to say about that? Absolutely, I was deserving. I sacrificed myself. I put myself in danger zone just to show my loyalty. But they didn't understand it. It's their fault. It's not mine. And I hope they will see the episode and then, you know, they'll get to know what they have done. You have conquered a lot of things, you know, in the show, and when I say so, you have been the queen which you call your fans otherwise the queens, you know. So do you feel that while challenges were thrown at you, while there was a team working also against you, you kind of ensured that मैं गई हूँ अभी show में, तो you know I will just kind of, though you didn't kind of win the trophy, you kind of survived those days? See, there is competition because it's a game. I played it according to my way. Unfortunately, I could not go further, even though I tried my best. What do I have to say? Like, I am very disappointed right now, and it broke me now actually. When you see the journey. Yes, now after coming out of the show. बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है खानज़ादी के अगर आपने दिमाग से खेला होता, दिल से नहीं, तो शायद आज कुछ अलग ही पूरा you know शो में आपका एक अलग होता पूरा. Did you feel कि आपने somewhere you invested your heart a lot more than your brains? Did you feel that at any point? मैं हमेशा ऐसी ही हूँ, इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा होता है. That's what I said. I always stay true to myself, no matter what. मुझे फेक करना नहीं आता है, और मैं कुछ भी करती हूँ मैं दिल से ही करती हूँ. मैं दिमाग से कम सोचती हूँ. But does that work against you because when you made certain remarks against Chahat? In this game, honestly, yes, it did. क्योंकि इसमें तो दिल का कोई खेल ही नहीं था. इसमें सबको दिमाग से ही खेलना था. But honestly, I had no idea about the game, about the concept. अगर मुझे पता होता तो शायद मैं जाती भी नहीं. चाहत पांडे के कैरेक्टर पे भी आपने कमेंट किया था. Do उसने you किया stay? था पहले. Yes, she started off and Yes, you she also made started. it. But do you stay, you know, stay कहीं ना कहीं और adamant कि I yes said you are. जो हुआ था, जो दिखाया नहीं गया था, I said it. See, I am here, sitting in front of you, doing an interview, giving my opinions. किसने बुलाया मुझे? जियो ने बुलाया.
तो मैं यहाँ कैसे इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोल सकती हूँ? There is something, right? And they didn't show it. They only showed my reaction. Why? Because they could not air it. Whatever had happened. वो इतनी वल्गर थी, इतनी डेरोगेटरी थी कि वो नहीं दिखाया जा सकता था, तो वो पार्ट पूरा कट कर दिया गया. बट कुछ लोग हैं जो समझदार है, वो समझ पा रहे हैं वो एपिसोड देख के कि कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, कोई चीज़ें यहाँ पे पूरी दिखाई नहीं गई. और कुछ लोग हैं जिनको देख के भी समझ नहीं आता है, तो उनको मैं क्या बोल सकती हूँ? आई थिंक वो ही उनको ही शायद अंधभक्त बोलता है, जो आंखें बंद करके भी कोई भी चीज़ मान लेता है. आपको ऐसा लगता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट वाला भी रिएक्शन था कि आप स्टैंड बाय करते हो? नहीं, मैं आई स्टैंड बाय इट. आई सेड इट ऑनेस्टली. मैं सब दिल से ही बोलती हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ. लोगों ने मुझे बिग बॉस में देखा है 24/7 लाइव. मैं कैसी थी, मैं कैसी हूँ. और यहाँ पे सिर्फ चाहत पांडे के साथ जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो पार्ट मैं सिर्फ नहीं कह रही हूँ. देयर आर many more things to say. Like कैसे बताओ, बहुत लोगों के साथ में बहुत मेरे कुछ अनबन रहे हैं जो वहाँ पे भी मेरा रिएक्शन दिखाया गया, पूरा सिनेरियो नहीं दिखाया गया. सो जाहिर सी बात है 50 लोग हैं तो किसको ही कितना इम्पोर्टेंस देंगे. पर मुझे काफ़ी दिखाया, भले ही वो नेगेटिव वे में दिखाया, पर दिखाया तो सही. सो आई एम ग्रेटफुल टू इट. पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है खानसादी के जो एडिटिंग हुई है और आपकी क्लिप्स जो आई है, व्हेन बी इट ऑन रील्स, बी इट यू नो ऑन द शो, वो उस तरह से हुई है कि वेयर दे हैव काइंड ऑफ प्रोजेक्टेड यू एज अ बैड कॉप एंड दैट इज व्हाट द एंटायर इंटेंट वाज, टू शो यू इन अ नेगेटिव लाइट. सी ड्रामा चाहिए और मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई दूसरी लड़कियाँ दे पा रही थी ऐसा कुछ ड्रामा, कुछ सिचुएशन, ऐसा कुछ सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा था. तो जाहिर सी बात है मुझे ही दिखाएंगे, मेरा रिएक्शन ही दिखाएंगे, क्योंकि मेरा रिएक्शन होता है लाउड. आई मस्ट से मैं वो ओन करती हूँ कि यस मैं हूँ, मैं हो जाती हूँ एग्रेसिव. मुझे गुस्सा आता है जब कुछ गलत होता है, तब अननेसेसरीली नहीं. और मैंने हमेशा मेरे पॉइंट्स रखे हैं हर चीज़ में. मेरे ओपिनियंस मैंने बहुत ही खुल के, बहुत ही स्ट्रांगली रखा है. और इस वजह से शायद दूसरे लोग इनसिक्योर हो जाते थे मुझसे कि ये लड़की तो किसी की सुन नहीं रही है, ये तो दब के खेलने वाली में से नहीं है. और बाहर से मेरा कोई ऐसे, मैंने कोई टीम भी बना के नहीं रखा था कि यहाँ आके मेरे अलायंस बन जाते जैसे बाकियों ने बनाया. तो जाहिर सी बात है, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ही सुशील और दूध की धुली हूँ, नहीं हूँ. मैं हो जाती हूँ लाउड, लेकिन जब तक कोई मुझे इंस्टिगेट नहीं करता है, प्रोवोक नहीं करता है, तब तक मैं वो रिएक्शन नहीं दे पाऊंगी. वो मुझसे होगा ही नहीं जब तक सामने से कुछ नहीं आता है. चाहत ने ये भी क्लेम किया था कि दिग्विजय के बारे में आप काफ़ी बैड माउथ कर रहे थे बिहाइंड हिज बैक. नहीं, ऐसा नहीं था. तो सिचुएशन ये हुआ था ना कि श्रुतिका और मेरी लड़ाई हो रही थी और उसी दौरान चाहत वाज क्राइंग इन द कॉर्नर बिकॉज वो पकड़ी गई. उसने झूठ बोला, लिटरली उसने अपनी माँ की कसम खाई कि मैंने ऐसा नहीं बोला. पर सब ने डेंजर जोन में देखा कि उसने एग्जैक्टली कुछ बोला था कि रजत जाए ऐसे करके, या मोनालिसा और विक्रांत को बचाऊंगी या समथिंग शी सेड. और जब पकड़ी गई, जब सबने उसको पूछा कि तूने ऐसे बोला था, हमें दिखा, लिटरली शी सेड कि वो AI हो सकता है. अच्छा. वो इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोलती है. उसने अपनी मम्मी की झूठी कसम खाई कि मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोला. और वो रोने लग गई. और जब मैंने देखा तो मुझे लगा क्या फेक करती है ये औरत, इतनी फेक. और उसने ये भी बोला था कि अगर मैं दिग्विजय को वोट करती हूँ तो रजत को बुरा लगेगा, या रजत को वोट करती हूँ तो दिग्विजय को बुरा लगेगा. आप समझ रहे हो ना? yes. तो वो सबको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रही थी. फिर विक्रांत और मोनालिसा के बारे में भी कह रही थी कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं उनको भी बचाऊंगी. या सो आई कुड फिगर इट आउट कि वो एक जगह नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन. एंड दैट्स व्हाट, लाइक जब मेरी श्रुतिका से अनबन हो रही थी, वो आके बीच में वो मुझे ब्लेम कर रही थी कि तू चुप हो जा, तूने ये किया वो किया. तो मैंने कहा तुम अपने आप को तो देखो, तुम क्यों रो रही हो? तुम पकड़ी गई इसलिए रो रही हो. मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? मैंने बोला है क्या तुमको? सब लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया, सब लोग तुम्हें कह रहे थे, हंस रहे हैं तुम पे. क्या मैंने ऐसा कुछ किया? मैंने मॉक किया? मैं तो नहीं टांग लड़ा रही ना. तो तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता है कि तुम मेरे कॉन्वर्सेशन में इंटरफेयर करो. एंड देन शी सेड तुझे रजत चाहिए ना, तुझे रजत चाहिए ना 3 times. Okay.
तो अब बताओ क्या रिएक्शन आएगा Of course. तब उस वक्त में। मैंने दूर दूर से भी नहीं ये सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे पता था दैट शी वाज इनसिक्योर, मुझे पता था कि शी इज़ ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन, तो इसलिए मैंने भी अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मेरी बॉन्ड रजत से स्ट्रांग हो जाती है देन मे बी शी विल फील बैड। तो विद दैट रिस्पेक्ट आई स्टेप बैक ऑनेस्टली। एंड उस कॉन्वर्जेशन में किसी और मैं क्या बोलूँ, मतलब कोई लड़का को बीच में ड्रैग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसीलिए मैंने उसको कहा कि अच्छा अब ये तुम्हारी असलियत है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी अब दिख रही है, जो तुम अभी बोल रही हो कि मुझे वो चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, तुम उसके लिए आई हो, इसलिए तुम ऑब्सेस्ड हो, इसलिए तुम उसको बीच में ला रही हो, जबकि उनका आना बीच में लाना कोई बनता ही नहीं था। ये तुम्हारे और मेरे बीच की एक फाइट चल रही है और तुम एक थर्ड पर्सन को लेके आते हो। तो तुमने किया ना ये शुरू, मैंने तो नहीं किया। तब मैंने कहा तुमको तो दो चाहिए, तुमको दिग्विजय भी चाहिए, तुमको रजत भी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने ही बोला है कि अगर मैं एक को करूंगी दूसरे को बुरा लगेगा, अगर उसको करूंगी फिर तीसरे, यू नो व्हाट आई मीन। वो सबको मैनिपुलेट कर रही थी। और जब दिग्विजय और रजत की फाइट हुई थी तो वो रजत पे चढ़ गई, मतलब चढ़ गई इन द सेंस, लोग यार कुछ भी बोलती हूँ तो उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या she started like questioning him, like बहुत गलत बोला रजत को कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और इनफैक्ट गाली भी दी कटारिया के सामने, वो एपिसोड में भी दिखा है, बीप बीप होके आया था। तो फिर उसके बाद रात को फिर रजत के साथ जाके बात कर रही है, सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट दिन देख रही हूँ कि दिग्विजय भी, फिर तीनों एक साथ हो गए। मुझे लगा ये क्या चल रहा है। तो इसलिए मैंने क्या गलत बोला कि तुमको तो दो चाहिए? मैंने क्या गलत बोला यहाँ पे बताओ? उसने तो ये बोला कि यार मैं कैसे समझाऊं, मैं कैसे दिखाऊं आपके सामने कोई लड़की अगर आके इफ शी स्प्रेड हर लेग एंड शो यू अ वेरी वल्गर जेस्चर विथ हर फिंगर टुवर्ड्स हर इंटीमेट एरिया एंड से कि उसका अंदर ले ले, और भी 4-5 लड़कों का भी ले ले, how would you feel? It's very crass. Just imagine, how would you feel? और यही सवाल मैंने जब दूसरे लड़कियों को पूछा कि मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते, तो सबने कहा कि उसका मुंह तोड़ के हम शो से बाहर चले जाते अगर कोई हमें ये कमेंट पास करता तो। एंड इट्स नॉट इनफ यार, उसने बहुत गंद बोला, लाइक मेरी माँ बहन पता नहीं किस किस को ड्रैग करके इतनी गंदी गालियाँ दी, मतलब इतना चीप वर्ड्स, दैट इज ऑल्सो इन हिंदी। इंग्लिश में भी बोले तो बंदा एक बार चलो ठीक है, मतलब थोड़ा सा जो भी है इतना भी बुरा नहीं लगता है, पर हिंदी, शुद्ध हिंदी में इतना गंद बोल रही थी वो, और मैं नहीं सह पाई यार। और उसका पूरा सीन कट हो गया क्योंकि वो नहीं दिखाया जा सकता है ऑफ कोर्स। तो मेरा रिएक्शन वो दिख के आया है, मैं हो गई थी एग्रेसिव, मैं ऑफ कोर्स हो जाऊंगी। शुक्र करो कि मैंने उसका मुंह नहीं तोड़ा। पर आपको ऐसा लगता है कि श्रुतिका आपके जरिए भी काफ़ी फुटेज ले रही थी? was she trying to kind of also just be, because आप पर कहीं ना कहीं फोकस काफ़ी था भी, and there are 50 contestants, सब पर नहीं हो रहा था इतना गेज, पर आप पर हो रहा था। Do you feel कि probably trying to create certain stunts around you, bringing the angle of men around you, she was trying to take that mileage via you? See, she is I think 42 years old woman and she acts like sweet 16, जो किसी भी वे में पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट करना ये बात। और मुझे बहुत इरिटेशन होता था उसके ये हरकतों से ना, कि हर जगह लाइक वो इंटरफेयर करती थी एंड अपने आप को पता नहीं बड़ी बुद्धिमान औरत समझती है, जो कि वो है नहीं। एक नंबर की बेवकूफ़, एक नंबर की झल्ली, जिसको ढंग से एक बात रखना भी नहीं आता। कोई कुछ भी कहती है, कुछ भी करती है, फनी हो जाता है। और इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि शी वॉज एक्टिंग लाइक शी वॉज द कैप्टन। समझ रहे हो ना, लड़कियों में मतलब वो कैप्टन है। yes. और सब उसके कहने के हिसाब से चले। ये पॉसिबल है क्या बताओ?
और वो भी श्रुति का। बट कहीं ना कहीं जहाँ पे इनके स्टेटमेंट्स ऐसे थे विच वर लाइक बिलो द बेल्ट, आई मस्ट से दैट योर स्टेटमेंट अराउंड नेहल चुदासमा आल्सो वेंट वायरल वेयर यू नो इट केम अक्रॉस लाइक अ बॉडी शेमिंग। क्या बॉडी शेमिंग, मुझे बताइए। वो जो चेस्ट केस पे जो यानी कमेंट किया द वे यू नो ये ऐसे यानी कहाँ है वो इट स्टार्टेड ऑफ ऑन द थर्ड एपिसोड। ओके, यू टेल मी वन थिंग, आपके पास फोन है, आप एक बार चैट जीपीटी से बात कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, वो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि क्या छाती चौड़ी करके आ जाती है, उसका मतलब क्या है। हिंदुस्तान की जनता ये मुझे जज कर रहे हैं जिनको हिंदी भी नहीं समझ में आता है। ये एक मुहावरा होता है बेसिकली, जो कि कहा जाता है कि छाती चौड़ी करके आना, जीत के आना, ओवर कॉन्फिडेंस, आप समझ रहे हो ना, ओवर पावर, एक डोमिनेशन, और इस चीज को स्लैंग बना दिया। कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था दैट the veterans were kind of against you. When I say so, Karan Patel, they were having some problem with the way you were talking or the way you were presenting yourself. आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनकी भी एक strategy थी to kind of let go of you in the show, because कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद से अगर आप उनको zero out कर देते हो, you could kind of have a better stand in the show. You're talking about Karan Patel? Karan Patel, yes. Honestly, उनके साथ मेरा कोई अभी तक ताल्लुकात नहीं रहा है. We didn't have anything to do with, मतलब बात भी नहीं हुआ होगा शायद. तो मुझे नहीं लगता है कि उनको क्या लगता है मेरे बारे में. पर कुछ लोग थे वहाँ पे जो कह रहे थे कि जो चीज़ चाहत ने मुझे कही थी, जब मैं सबके पास रो रो के जाके कह रही थी कि इसने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, तुम लोग समझो, तुम लोग इस चीज़ पे स्टैंड लो, जबकि मुझे कोई वो ज़रूरत भी नहीं था करने के लिए. पर एट द सेम टाइम आई एम अ वुमेन, हम इमोशनल हो जाते हैं, एंड स्पेशली जब ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलता है. कभी सामने से भी मैंने किसी को लड़ते हुए नहीं देखा है ऐसे गंदे तरीके से, और वो चीज़ एक औरत पता नहीं कहाँ से उठ के आई है और सामने मुझे बोल रही है, इतना गंदा गंदा शब्द इस्तेमाल कर रही है, मेरे पूरे फैमिली को ड्रैग कर रही है, उनको अब्यूज़ कर रही है. सो जाहिर सी बात है मैं जाऊँगी सबके पास, मैं पूछूंगी कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो इस बारे में, क्या करना है, अब मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड अराउंड दिस वुमेन. शी इज स्टिल लाइक, मुझे वो तभी भी प्रोवोक करे जा रही थी. शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद वट शी हैड डन. शी केप्ट ऑन प्रोवोकिंग मी. Did you feel it was Shrutika who was doing more than what Chahat? No, it was her. Chahat. It was Chahat. It was her. Yes. It was her. And episode में भी आप देखना कि दिग्विजय के पास जाके भी उसने मेरे बारे में चुगली की, जो कि पूरा दिखा एपिसोड में कि जो आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था शायद कि दिग्विजय के साथ कुछ so and so happened. दिग्विजय केम जब सब खत्म हो गया था, ये जो मैस क्रिएट हुआ था ना, ये खत्म हो गया था. कहानी खत्म होने के बाद आता है दिग्विजय और उसको सिर्फ मेरा रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि श्रुतिका ने पहले ही चाहत को बहला फुसला के समझा के कि अभी गाली मत दे, गाली मत दे. वो भी दिखा है एपिसोड में थोड़ा थोड़ा पार्ट्स ना, चंक्स. तो उसको पहले से ही समझाने लगे थे कि तू गाली मत दे, तू गाली बहुत हो गया. तो उस वक्त में दिग्विजय आता है और वहाँ मेरा रिएक्शन उसको दिख जाता है कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही थी. तो मैं एग्जैक्टली वही करके बता रही थी जो उसने किया था मेरे साथ. और तब दिग्विजय को लगा कि मैं यहाँ गलत हूँ, बिकॉज उसको सिर्फ मेरा रिएक्शन दिखा, उसको चाहत का प्रोवोकेशन या चाहत का रिएक्शन नहीं दिखा कि उसने क्या किया था. तो मैंने उसको यही बोला था कि तेरे एब्सेंस में जब ये फाइट हुआ, तुझे जब नॉलेज ही नहीं है, इस बात का कोई भी अता पता नहीं है, तो तू कॉन्फिडेंटली कैसे मुझ पर ब्लेम कर सकता है कि मैं गलत हूँ. तू मौजूद नहीं था तो तू कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकता है. तो तब दिग्विजय और मेरी एक अनबन हो गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक वो चाहत को पहले से जानता है. मुझे शायद हार्डली आई थिंक मेरा और उसका 1-2 बार ही मुलाकात हुआ होगा. तो ही टुक हर स्टैंड विच आई फाउंड वेरी अनफेयर. मुझे नहीं सही लगा, बिकॉज आई जेन्युइनली मैंने उसके लिए भी स्टैंड लिया था जब वो पीटा था ना रजत से. तो मैं रजत के पास जाके मैंने बोला कि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता. आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्विंस रजत कि वो जाके एक बार बात कर ले, एक बार सॉर्ट कर ले दिग्विजय के साथ. जबकि गलती दिग्विजय की थी उस दिन. दिग्विजय ने प्रोवोक किया था रजत को पागल बोल के, राइट. तो मुझे वही बुरा लगा कि मैं तुम लोग के लिए स्टैंड लेती हूँ. मुझे पता होता है कि सही गलत क्या है क्या नहीं है. और जब आज मैं इतने एक मैस में मैं पड़ गई हूँ बीच में, और ये लोग तो करके हंस के चले गए, और यहाँ तुम लोग
मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम लोग को पहले नहीं दिखा मैं कैसी हूँ, नेचर से समझ में नहीं आता है क्या, पर्सनालिटी से समझ में नहीं आता है क्या। तो इस बात पे मैंने उसको, वो मुझसे लड़ रहा था कि नहीं नहीं मुझे तो दिखा, तू ऐसा कर रही है वो, तो मैंने उसको तब कहा था कि तू खुद, क्या बोला था मैंने, कुछ तो बोला था कि थूक के चाटता है। ओके। रजत के साथ उसका अनबन हो गया था और उसके बाद भी वो रजत का चमचा बन के घूम रहा है। तो मैंने वही बोला उसको, क्योंकि मुझे भी हीट ऑफ द मोमेंट मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या बोलूँ कि ये मुझे ब्लेम कर रहा है जबकि इसको पता भी नहीं है हुआ क्या था। तो तब मैंने बोला था, तो सिर्फ यही बोला था मैंने। अब जाके ये चाहत क्या करती है, ये डेंजर जोन में कुछ नहीं, माहौल शांत है बिल्कुल। दिग्विजय और मैं हंस हंस के अरेना से बाहर आए, तो सोफे पे बैठी हूँ, तो अभी इसको लग रहा है कि कुछ तो करूँ। अभी उसको पता चल गया खानजादी का ट्रिगर पॉइंट कि पोक कर दे, इसको प्रोवोक कर दे, वो हो जाएगी, क्योंकि उसको नहीं सहा जाता। तो उसने पूरा आग लगा दिया कि खानजादी ने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, तुमको गाली दिया, तुमको ये किया वो किया, जो सरासर झूठ है। ऐसा कुछ होता तो वो दिखाई नहीं देता क्या? दिखता नहीं है। खानजादी जो भी कर रही थी दिखा रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग नहीं दिख रहे थे, पर खानजादी जो कर रही थी, खानजादी दिख रही थी। तो जाहिर सी बात है, अगर गाली देती खानजादी दिग्विजय को, वो दिख जाता। वो नहीं दिखाया क्योंकि था ही नहीं ऐसा कुछ, पर चाहत का दिखाया, म्यूट करके दिखाया, स्लोमो कर दिया लिटरली, और पूरा स्लोमो करके म्यूट करके, और बाद में जब कट हुआ फिर मैं पागलों की जैसा, मैं लाइक एग्रेसिव होके मैं बता रही थी कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। क्यों उसका पार्ट म्यूट किया गया? दिखाया पर म्यूट था, व्हाई? But also, you know, एक बात ये भी है कि you have been a part of reality shows because your mother somewhere wanted you know, to be a part of Big Boss में आपने किया, अभी The 50 में किया है. Would you want to carry forward your stint or would you want to, you know, get back to music, producing, you know, albums like that? कहाँ पे आपका focus? Reality show as a contestant, especially this kind of show जहाँ पे alliance games होंगे या ये सब होगा, वो तो मेरे से नहीं हो पाएगा, वो तो मैंने बोल दिया. बट येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आगे जाके डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा. आई एम गोइंग टू रिलीज माई म्यूज़िक, माई सॉन्ग्स, स्पेशली रैप सॉन्ग्स जो पेंडिंग है. बहुत टाइम से मैं कह रही थी कि मुझे लेकर आना है. बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मैंने सालों से बना के रखा है, वो मैं कभी रिलीज़ नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई हैड फियर ऑफ जजमेंट ऑनेस्टली. क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो रियलिटी शो से मुझे जानते हैं, तो म्यूज़िक वो मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, यही सोच के मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी. क्योंकि हिप हॉप जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, वो बहुत हैप्पी वाइब्रेंट नहीं है. हिप हॉप इज़ वेरी रियल, जो मैं हूँ. करेक्ट. सो मुझे हमेशा वो कंफ्यूजन था कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे अगर मैंने ऐसे सॉन्ग्स बनाए तो. बट नाउ आई एम डैम श्योर कि लोगों को मेरी पर्सनालिटी अच्छी लग गई है, नो मैटर व्हाट. चाहे जितना भी मुझे नेगेटिव दिखाने की कोशिश करे ये लोग, फिर भी लोग जानते हैं कि मैं कैसी हूँ. तो आई फील नाउ इट्स द राइट टाइम टू रिलीज ऑल माई सॉन्ग्स एंड yes, let's hope for the best. The interesting part is also that you had 2,000 followers which have spiked to 1 million followers. Yeah. Now, do you feel great about it? Do you feel overwhelmed or do you feel lonely even after, you know, having so many followers? Honestly, I used to panic actually. Yeah. Because it's a huge responsibility. Exactly. 2,000 to 1 million. Just imagine. तो मुझे लग रहा था कि मैं हैंडल कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड ग्रेट सपोर्ट ना. तो ना मेरा कोई मैनेजमेंट टीम था ना है अभी, और घर वाले से तो मैं मतलब आई स्टे अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स. सो आई वाज लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ अचानक, ये क्या मतलब जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैं चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी. क्योंकि यार जैसे मैंने बताया कि इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई यूज्ड टू हैव फियर ऑफ जजमेंट्स अ लॉट. नाउ आई ऑनेस्टली डोंट थिंक अबाउट it. I just want to go with the flow, and I really like want to be happy, and I want to feel myself now. I don't want to please people anymore. And as we also move towards the end of the conversation, very interesting thing which kind of attracted me about you was you're a rebel of a kind, and when I say so, you have left your house 5 times to kind of build yourself, and touch wood, so far your journey has been very great. When you look back to the person you were, to the person you are now, do you feel satisfied where you have grown yourself?
and carrying forward the royalness which you always wanted, the princess treatment, the Khanzadi of yours. Yes, I'm super grateful that जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा मुझे मिला, लेकिन फेम मिलना जितना मुश्किल है उसको संभालना और मुश्किल है. और आई एम जस्ट होपिंग दैट मुझे सही लोग मिले मेरे लाइफ में. मैं चाहती हूँ कि मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो और हम सब साथ में आगे बढ़े लाइफ में, क्योंकि अकेले आई डोंट थिंक सो मुझसे हो पाएगा. और ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जैसे मैं पहले बोल रही हूँ आई एम लून वुल्फ, आई एम दिस दैट. नो, ऐसा कुछ नहीं होता है. ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोग चाहिए. इस गेम में भी लोग चाहिए था. करेक्ट. अलायंस तो लोग हर जगह चाहिए. सो सही लोग, अगेन सही लोग. सो आई जस्ट मैनिफेस्ट कि मुझे सही लोग मिले मेरे लाइफ में, एक हमारी स्ट्रॉन्ग टीम हो और बस काम करते रहे. And lastly, I'm just going to play a very small rapid fire segment with you, which is a Lion's Den rapid fire. Yeah. If you had to describe these contestants in just one word, Chahat Pandey. Manipulator. Digvijay. Fake actually. For Chahat Pandey fake. Okay. Digvijay. दिग्विजय को क्या बोलूँ यार, innocent. He is very innocent. Prince Narula. Oh, dominating. Nehal Chudasma. Overconfident. Bebika Dhurve. Sweet सी, sweet. Karan Patel. Mr. India. Pick one for each title, and that we have already said this. The biggest faker in the Mahal. Chahat Pandey. The puppet master who's actually running the game. Rajat or Prince. The most uneducated player who doesn't have much knowledge, like a Gawar right now, he's on the show. He or she. चाहत या दिग्विजय. The person who needs a stylist more than a strategist. I think सबका सही था यार. That girl again. हाँ? Shrutika. Yeah, either her or चाहत. Okay. And lastly, the most disappointing friend. The most disappointing friend. Rajat. Because I really thought he's very understanding, clever, smart, but he's not. This or that में, if you had to select Big Boss or the 50. Big Boss. A respectful exit or a controversial stay. Respectful exit of course, पर अगर controversy कुछ हो जाती है तो इसमें मेरी गलती नहीं है. वो उन्हीं का कुछ होगा, इसलिए वो मेरी तरफ से reaction गया होगा और वो controversy बन गई. Rapping or reality TV. Rapping. Loyalty or prize money. Sorry, loyalty. Loyalty or prize money. What do you prefer? Loyalty. Okay, and last. Loyalty and royalty. And last, if you had one message for the lion, if he was standing right in front of you without the mask, what would it be? What was the first thing that would come into your mind? Sometimes you are very biased, lion. क्योंकि टास्क में मेरा जो लास्ट वाला टास्क था वहाँ पे आपने मुझे बोला नहीं that you cannot move under the box, water box. So इसलिए मैंने मूव किया और वो वाटर ड्रेन हो गया. इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी. आपको बोल देना चाहिए था कि यू कैन नॉट मूव, तो मैं स्टिल रहती, मैं ले लेती ना पानी का बोझ, पर मुझे बताया ही नहीं. और फ्यू टाइम्स ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है उन्होंने चीटिंग किया था पर उनको सेव किया गया और मुझे बताया गया कि मैंने चीटिंग किया है. सो विच वॉज अनफेयर. आपने शायद मास्क पहन लिया है लायन, तो इसलिए आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, पर दुनिया देख सकती है. Lovely chatting with you, Khanzadi. I must say that lovely interaction, and Thank it was good to see that you just speak your heart out, and I think that's the best part of you. Thank you so much.